Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is fertilization. In last lecture we discussed the ovarian and uterine cycle. So what is the fertilization? Fertilization definition is the fusion of the male gamete and female gamete. That's called as a fertilization. After the fertilization, you see this slide. तो हमने oogenesis पढ़ा था. oogenesis में ओवम मैच्योर हो रहा है, उसको एंट्रम बन रहा है, ये मैच्योर हो गया और ये ओव्यूलेशन हो गई. ओव्यूलेशन हो गई, ये you see here that this is the ovum outside from the ovary, and this is ovulated, and behind this is the corpus luteum. So now this ovum come into the uterine tube where the fertilization occur. Normally fertilization occur at the ampulla of the uterine tube. Yeah, fallopian tube is the same thing. Here you see that the oocyte in the tube, oocyte penetrated by the sperm. Now at this region the fertilization occur. So these are the thread-like structure. These are the sperm. Sperm first penetrate the corona radiata, then zona pellucida, then enter into the nucleus of the oocyte, and the pronuclei of the female, pronuclei of the male join together. In this way fertilization occur. At the end of the lecture, the student should know what is the fertilization, where it is occur, site of the fertilization, different phases of the fertilization, and the result of the fertilization. Fertilization की definition, fusion of the male and female gamete, ampulla of the जो है fallopian tube की तरफ आती है और different phases है. कोरोना रेडिएटा को फर्स्ट फेज में पेनिट्रेट करेगी, फिर जोना पेलिसिडा को, ये है phases. और रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिल रहे हैं तो जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है. तो उसको हम कहते हैं रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन. देन व्हाट फॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस, व्हेन द जाइगोट cleavage, different cell division occur, 2 cell stage, 4 cell stage, 18 cell stage, 16 cell stage. So this stage is called as a blastomere, and the blastomere cells, the combination of the cells where the cavities are produced, this is called as a blastocyst. On this blastocyst, when blastocyst occur, then they will implant in the यूट्रस. यूट्रस की हमने यूट्राइन साइकिल में पढ़ा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, कि 3 लेयर होती हैं. ऊपर वाली जो लेयर होती है उस पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में शेड आउट हो जाती है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो उसी जो यूट्राइन में है वहाँ पे इम्प्लांट होगा. तो मोस्टली उसकी साइड जो है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस होती है. मैकेनिज्म ऑफ द इम्प्लांटेशन वी विल डिस्कस इन द लेटर स्लाइड. मैकेनिज्म पहले उसका तो ये आप अभी नहीं समझेंगे. और एक्टोपिक प्रेगनेंसी, नॉर्मली तो जो एम्पुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब है वहाँ पे होती है. अगर एक्टोपिक हो तो कहाँ पे होती है? तो एक्सेप्ट द एम्पुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब किसी जगह पे भी हो सकती है, ओवरी में भी हो सकती है और एब्डोमिनल कैविटी में भी हो सकती है. इस तरह हमने इस ऑब्जेक्ट जो है ये है. Fertilization is the process during which the male gamete को हम sperm कहते हैं, unite with the female gamete oocyte to form the single cell. अब जो male gamete और female gamete आपस में unite हुए हैं और वो haploid number है, haploid number of the male, haploid number of the female, when unite they become a diploid number, and single cell we call as a zygote. So begin with the contact between the sperm and ovum. फर्टिलाइजेशन कैसे होगी ये आप देख रहे हैं कि स्पर्म और ओवम की आपस में फ्यूजन को कह रहे हैं. तो फ्यूजन के हिसाब से जो फर्स्ट है ये है ओवम. ओवम के अराउंड ये कोरोना रेडिएटा है और ये वाइट कलर की जोना पेल्यूसिडा है और ये स्पर्म हैं. स्पर्म इनिशियली कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करेगा, फिर जोना पेल्यूसिडा को, फिर इसमें इंटर होंगे. फर्दर जो प्रोसेस है आगे हम डिस्कस करें. बिगिन कैसे होगा? कांटेक्ट बिटवीन द स्पर्म एंड ओवम. ये स्पर्म है और ओवम आपस में कांटेक्ट होगा तो इसकी बिगिनिंग होगी. और
end up with the intermilling. Intermilling means mixing of the maternal and paternal chromosome. जैसे वो न्यूक्लियस स्पर्म इंटर हो जाएगा इस ओवम के अंदर न्यूक्लियस में, तो ये मटेरियल पड़ा हुआ है जो क्रोमोसोम्स है, और क्रोमोसोम्स इसका और इसका आपस में इंटरचेंज होंगे, इसको हम कहते हैं इंटरमिलिंग ऑफ द मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स. सो साइड क्या है? यूजुअली एम्प्यूला ऑफ द बेटा, एम्प्यूला ऑफ द यूट्राइन ट्यूब. ये एम्प्यूला, ये देखें आप, ये यहाँ से लेके अब यहाँ तक ये है फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब का स्टमस होता है, फिर बॉडी होती है, फिर एम्प्यूला होता है, ये जो है फिब्रिया है. तो यहाँ पे ये ओवरी पड़ी हुई है, ओवरी ने अपना ओवम ओव्यूलेटेड किया है. ओव्यूलेटेड ओवम दे बिकम कैच्ड बाय दिस फिब्रिया ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब से फिब्रिया इसको कैच करेंगे, तो ये कैच करके यहाँ से आएंगे, यहाँ तक आएंगे. ये है एम्प्यूला वेयर नॉर्मली फर्टिलाइजेशन आकर. जैसे ओवम यहाँ पे आता है, तो जैसे ये ओवम यहाँ पे आता है, तो ओवम से कुछ मटेरियल निकलता है जो इसको कीमोटैक्सिस करवाते हैं. स्पर्म की कीमोटैक्सिस यानी कि उसको अट्रैक्शन करते हैं. अगर स्पर्म यहाँ पे पड़े हुए हैं यूट्रस पे, तो ये एक फैक्टर रिलीज करेगा और स्पर्म मूव करते हैं. नॉर्मली स्पर्म अगर 1 or 2 days बिफोर इंटरकोर्स हुआ होगा, तो स्पर्म यहाँ पे यूट्रस में और फेलोपियन ट्यूब में पड़ा होगा, और जैसे ओवम ओव्यूलेटेड करके यहाँ के आ गए, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा. एम्प्यूला इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द fallopian tube, widest and the longest part. Fertilization may occur in the other part of the tube. वो एक्टोपिक हो जाएगा. एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसको कहते हैं हम, तो नॉर्मली जो है एम्प्यूला में होती है. does not occur in the uterine cavity. Uterine cavity में फर्टिलाइजेशन नहीं होती है. एक्टोपिक प्रेगनेंसी का आगे स्लाइड है, कहाँ कहाँ पे हो सकती है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो केमिकल सिग्नलिंग फ्रॉम द oocyte अट्रैक्ट द स्पर्म. मैंने बोला कि केमिकल सिग्नलिंग जैसे ओव्यूलेशन हो गई, वो हम यहाँ पे पहुंचा, तो कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं जो स्पर्म को अट्रैक्ट करते हैं, और स्पर्म एट द साइट ऑफ द ओवम की जगह पे आ जाएगा. तो फेजेस क्या है? फेजेस में आप ये देखें, एक तो स्पर्म है, स्पर्म आया है कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट कर रहा है. फिर जो है ये जोना पेलिसुडा को पेनिट्रेट कर रहा है, और इसकी जो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पेनिट्रेट नहीं कर रही है, और ये सिर्फ स्पर्म अंदर गया है. तो फेजेस: स्पर्म थ्रू द कोरोना रेडिएटा, passes of the sperm through the corona radiata under the effect of hyaluronidase enzyme. तो मैंने कहा था कि स्पर्म के ऊपर एक एक्रोसोम होता है. एक्रोसोम में क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं, जो ये देखिए ये एंजाइम रिलीज किए हैं जो कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा. तो उसके बाद पेनिट्रेट ऑफ द जोना पेल्यूसिडा. जोना पेल्यूसिडा को भी मैंने आपको बताया था कि ये जो 3 नंबर पे ये जो पड़ा हुआ है, तो ये जोना पेल्यूसिडा है. जोना पेल्यूसिडा बाय द हेड ऑफ द स्पर्म थ्रू द एक्रोसिन एंजाइम. हेलिरोनाइडेज एंजाइम डिफरेंट टाइप की एंजाइम होती हैं, और दूसरे है एक्रोसिन एंजाइम फ्रॉम द एक्रोसोम ऑफ द वन स्पर्म. हेड ऑफ द स्पर्म को एक्रोसोम कर रहे हैं, वो उसकी कैपिसिटेशन होती है, तो फिर ये पेनिट्रेशन होती है. तो फर्दर हम उसमें फर्टिलाइजेशन में और भी स्लाइड हैं, तो उसमें हम डिस्कस करें. फ्यूजन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte एंड द प्लाज्मा एंड द स्पर्म. स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, आउटर सेल वॉल जो है, वो नहीं जाती है, रिमेन बिहाइंड रहती है. इसलिए मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte एंड स्पर्म की कॉम्बिनेशन, ये है 3 प्रोसेस. 3 प्रोसेस में क्या है? एक तो कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट कर रहा है, दूसरा जोना पेलिसुडा को पेनिट्रेट कर रहा है, तीसरा जो है स्पर्म पेनिट्रेट करके अंदर गया, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte के साथ जाके अटैच होगा.
तो जब हमने oogenesis पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था तो जो सेकंड माइटोटिक डिवीजन है कंप्लीट तब होगी जब स्पर्म इंटर करेगा। अगर स्पर्म इंटर नहीं किया है तो सेकंड माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं होती है। तो फोर्थ प्रोसेस क्या है? कंप्लीटेशन ऑफ द सेकंड माइटोटिक डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोन्यूक्लियाई। प्रोन्यूक्लियाई जैसे स्पर्म गया तो जो ओवम था उसने सेकंड माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट की और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई बना दिया। अब द फॉर्मेशन ऑफ द मेल न्यूक्लियाई, जो स्पर्म अंदर गया है वो भी मेल प्रोन्यूक्लियाई बनाएगा। वो इलांगेटेड था, अब वो सर्कुलर हो गया। तो आप ये देखें, ये एक फीमेल प्रोन्यूक्लियाई पड़ा हुआ है, अब ये मेल प्रोन्यूक्लियाई। अब इन दोनों की आपस में ज्वाइन करेंगे और जाइगोट फॉर्मेशन होगी। इट इज द होल न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, द इट्स टेल डिटेच एंड डीजेनरेट। जो स्पर्म का टेल था वो डिटेच हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और डीजेनरेट होगा। जोना रिएक्शन क्या है ये पूछा जाता है वाइवा में। इट इज द चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द जोना पेलिसिडा दैट मेक इट द इम्परमिएबल टू द अदर स्पर्म। जोना पेलिसिडा क्या है कि एक स्पर्म, ये स्पर्म पड़ा हुआ है, जैसे ये अंदर चला गया है तो जोना पेलिसिडा में एक रिएक्शन आ जाता है जिसको हम जोना रिएक्शन कहते हैं कि उसके जो इधर रिसेप्टर लगे हुए थे वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि दूसरे स्पर्म इसमें इंटर नहीं हो सकेंगे। पॉली स्पर्मिया से प्रिवेंशन होगी, जोना रिएक्शन इसको कहते हैं। तो क्रोमोसोम्स इन द जाइगोट, अब ये दो प्रोन्यूक्लियाई था, मेल प्रोन्यूक्लियाई एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, ये दोनों आपस में ज्वाइन हुए हैं। ज्वाइन करके ये आपस में इंटरचेंज भी मटेरियल क्या कर रहे हैं और आपस में ज्वाइन करके, और जाइगोट इज जेनेटिकली यूनिक। यूनिक ये है कि इसमें मटेरियल जो है हाफ नंबर ऑफ द फीमेल है और हाफ नंबर ऑफ द मेल है, हाफ नंबर ऑफ द फादर एंड हाफ नंबर ऑफ द फीमेल। हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स कम फ्रॉम द फादर एंड अदर हाफ इज कम फ्रॉम द मदर। सो ये पहले हैप्लॉइड था, हैप्लॉइड और स्पर्म भी हैप्लॉइड था और उस साइड भी हैप्लॉइड था, और हैप्लॉइड और हैप्लॉइड आपस में बने तो ये डिप्लॉइड हो गया और जाइगोट कंटेन नाउ 46 है। तो जो स्पर्म में था वो 23 था, अब ये स्पर्म और ओवम मिले तो ये नॉर्मल सेल जो है 46 का डिप्लॉइड हो गया। द न्यू कॉम्बिनेशन इज फॉर्म्ड which is the different from the either of the parents। अपर में इंटरचेंजिंग हो गई तो इसमें चेंजेस कुछ मदर की आएंगे, कुछ फादर की आएंगे। कहते हैं कि भाई इसकी जो आंखें हैं वो फादर की तरह है, इसकी जो वॉइस है या इसका जो बिहेवियर है वो मदर की तरह है, या इसकी जो और फिजिक्स है वो मदर के साथ। तो इसका कॉम्बिनेशन है तो कुछ फीचर मदर पे जाएंगे, कुछ फीचर फादर पे जाएंगे। सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो, सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्रोमोसोमल इज डिटेक्टेड एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन हो गई उसी टाइम पे पता, वो एक तो पता चल जाता है, पल पता हमें नहीं चलता लेकिन उसी टाइम पे डिटर्मिनेशन हो गई है। आइदर स्पर्म में जो था वो एक्स था या वाई था। जो सेक्स क्रोमोसोम्स है फिर जो फीमेल का होता है वो एक्स एक्स होता है, स्पर्म का जो मेल का जो होता है एक्स वाई होता है। अगर स्पर्म वाई वाला जाएगा तो बेबी बॉय पैदा होगा, अगर स्पर्म एक्स वाला होगा तो बेबी फीमेल बेबी की पैदाश होगी। सेक्स इज डिटरमिन्ड बाय द टाइप ऑफ द स्पर्म, आइदर वाई आइदर एक्स। सो इट इज द फादर हु इज whose gamete decide the sex। गैमेट जो होगा उसमें एक्स होगा तो वाई होगा, तो फादर का ही जो गैमेट होता है वो डिसाइड करता है कि फीमेल के पास तो दोनों ही एक्स होते हैं। तो रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? स्टिमुलेटेड द पेनिट्रेटेड oocyte टू कंप्लीट इट्स सेकंड माइटोटिक डिवीजन। जैसे स्पर्म पे अंदर गया तो सेकंड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द oocyte कंप्लीट होगी। रीस्टोर ऑफ द नॉर्मल डिप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन द जाइगोट। हैप्लॉइड नंबर था, रीस्टोर। रिजल्ट ये है, एक तो एक सेकंड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द oocyte कंप्लीट हुई, दूसरा जो रीस्टोर ऑफ द नॉर्मल क्रोमोसोम जो 46 होता है वो हो गया है। डिटरमाइन द क्रोमोसोमल सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो, डिटर्मिनेशन भी हो हमें नहीं पता चलता है, हमें तो तीसरे या चौथे हफ्ते में फिर जाके हम तीसरे चौथे हफ्ते में नहीं, दूसरे मंथ में या तीसरे मंथ में हमें सेक्स की डिटर्मिनेशन होती है। जब
वो पैकेट होंगे पैकेट तो जैसे ये जाइगोट की फॉर्मेशन होगी उसी टाइम पे सेक्स का पता चल जाएगा, इधर मेल का एक्स गया है या वाई गया है, एक्स गया होगा तो फीमेल, वाई गया तो मेल। सो अब ये जो जाइगोट बन गया है उसमें सेल डिवीजन शुरू होगी, उसको हम क्लीवेज कहते हैं। वाइवा में कभी पूछा जाता है व्हाट इज क्लीवेज, इट इज द सेल डिवीजन व्हिच occur in the zygote. Cleavage of the zygote consists of the repeated mitotic division of the zygote. Mitotic division, अब ये आप देखें तो ये 2 सेल स्टेट, पहले 1 सेल स्टेट था, अब वो 2 सेल स्टेट में फिर 4 सेल स्टेट, फिर 8 सेल, 8 से 32 सेल तक उसको हम मारूला कहते हैं। ये स्पंजी टाइप के सेल है। अब इन सेलों में एक कैविटी प्रोड्यूस हो रही है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कह रहे हैं, और ये फिर दो में डिवाइड हो रहे हैं, वन इज द इनर मास एंड अदर इज द आउटर मास। वन इज द इनर मास एंड अदर इज द आउटर मास। ये है इनर मास जो जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट, और ये है आउटर मास जो इसको इनसर्कलिंग कर रहे हैं उसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट से प्लासेंटा की फॉर्मेशन होगी और एम्ब्रियोब्लास्ट से प्रॉपर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल डिवीजन, these smaller embryonic cell are called as a blastomere। ये जो 1 सेल स्टेट थी जाइगोट, जाइगोट से फिर 2 सेल स्टेट, 4 सेल स्टेट, ये जो सेल छोटे छोटे बने हैं इसको हम ब्लास्टोमेयर कह रहे हैं। इस ब्लास्टोमेयर में कैविटी बन रही है तो उसको हम ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कह रहे हैं। नॉर्मली आकर इन द यूट्राइन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुई, वहाँ पे ये रिपीट सेल डिवीजन हो रही है और क्लीवेज हो रही है। 2 सेल स्टेट, 4 सेल स्टेट, 8 सेल स्टेट, इसी तरह इसमें फर्दर इट बिगिन अबाउट द 30 आवर आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया, फीमेल और मेल गैमेट्स आपस में मिल गए और ये 30 आवर के अंदर इसकी यानी कि ये क्लीवेज शुरू हो जाएगी। So zygote divided into the 2 cell state, 4 cell state, 8 cell में 16 up to the 32 zygote lie within the थिक जोना पेल्यूसिडा। जो जोना पेल्यूसिडा था ये आप देखें, जोना पेल्यूसिडा इसमें रिमेनिंग है। जैसे ये इम्प्लांट करेगा यूट्रस में तो जोना पेल्यूसिडा की डीजेनरेशन होगी। सो जाइगोट माइग्रेट इन द यूट्राइन ट्यूब फ्रॉम इट्स लेटरल एंड टू इट्स मीडियल एंड। लेटरल एंड जो ओवरी की तरफ था, अब ये मीडियल एंड यूट्रस की तरफ में जाइगोट की माइग्रेशन होगी। जोना पेल्यूसिडा इज ट्रांसल्यूसेंट अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। So marula, where the Tolio to 32 blastomere state, the developing human is called as a morula, and marula reach the uterine cavity at this stage, and a spherical marula is formed about the 3 days after the fertilization. After the fertilization 30 hour के बाद शुरू हो जाती है, अब to 3 days तक ये 32 स्टेज तक पहुंच जाती है। अब ये फॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट मैंने आपको बताया था कि पहले ये ब्लास्टोमेयर बनता है, ब्लास्टोमेयर के बाद ये केव, इसमें एक केव जिसको हम ब्लास्टोमेयर, ये छोटे छोटे सेल जो है उसको हम ब्लास्टोमेयर करें, अब ब्लास्टोमेयर में ये केविटी प्रोड्यूस हो रही है ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो सेल हैं दो में डिवाइड हो गए हैं, एक इनर सेल मास एंड अदर इज आउटर सेल मास। इनर सेल मास को हम कह रहे हैं एम्ब्रियोब्लास्ट, आउटर सेल मास को कह रहे हैं हम ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट के प्लासेंटा की फॉर्मेशन होगी और एम्ब्रियोब्लास्ट से जो है वो प्रॉपर एम्ब्रियो जो है, फीटस जो है उसकी फॉर्म है। मारूला रीच एट द यूट्राइन कैविटी बाय द फोर्थ डे तक यूट्राइन कैविटी में पहुंच जाता है, लेकिन डे 6 और 7 पे वो जाके उसमें इम्प्लांटेशन करता है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन 4th डे तक ये यूट्राइन कैविटी यूट्राइन में बने रिमेन फ्री फॉर 1 or 2 days, फ्री रहता है और फ्लूइड पासेस फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी टू द मारूला।
यूट्राइन कैविटी में जो फ्लूइड है, फ्लूइड इस मारूला में पेनिट्रेट करेगा और ये कैविटी प्रोड्यूस करेगा. नाउ द मारूला इज कॉल्ड एज अ ब्लास्टोसिस्ट. अब जो मारूला है उसको हम अब ब्लास्टोसिस्ट कह रहे हैं क्योंकि इसमें एक कैविटी प्रोड्यूस हो गई है. It cavity is called as a blastocystic cavity, and it's divided into the embryoblast and the trophoblast. Embryoblast is the inner cell mass and the trophoblast is the outer cell mass. जो ब्लास्टोसिस्ट है अब उसमें क्या है, एक तो ट्रोफोब्लास्ट है, आउटर सेल मास है, इनर सेल मास, एम्ब्रियोब्लास्ट है और एक ये कैविटी है जिसको हम ये कह रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट कैविटी. ये इनर सेल मास जिसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट कह रहे थे. और ये आउटर सेल वाल जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट से फिर जो बनेगा वो प्लासेंटा बनेगा. इनर और ब्लास्टो एम्ब्रियोब्लास्ट प्रॉपर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी. अब ये ब्लास्टोसिस्ट हो गई है, 4th डे तक यूरेट्राइन कैविटी में बैठ गई है. 1 to 2 days वो वहाँ पे रहेगा. उसका फ्लूइड जो है उसमें ब्लास्टोमेयर में जाएगा और ब्लास्टोमेयर ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको बाद इसकी जो है इम्प्लांटेशन होगी. इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन क्या है ये आप देखें. ये जो है एट द डे ऑफ द 6th ये ब्लास्टोसिस्ट जो है अब ये यूट्रस है. यूट्रस का ये एंडोमेट्रियम है. यूट्रस के साथ ये अटैच होगा और इसको पेनिट्रेट करेगा और पूरा इस यूट्रस के ल्यूमेन में अंदर चला जाएगा. इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन. द प्रोसेस बाय विच द ब्लास्टोसिस्ट पेनिट्रेट द स्फेरिकल कंपैक्ट लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन. साइट क्या है, मोस्टली posterior wall of the uterus near the fundus. posterior wall आप यूट्रस का देखेंगे तो posterior wall होती है, anterior wall होती है, fundus होती है, नीचे cervix होता है. तो इसका जो है posterior wall पे implantation होती है और implantation begin किस दिन में 6th day पे वो begin होगी और completed by the 11th और 12th day तक, यानी कि एक वीक इसको पूरा लग जाता है इसको पूरा पेनिट्रेट करने में. पहले ये अटैच होता है फिर आस्ता आस्ता इसको पेनिट्रेट करके और पूरा जो प्रेगनेंसी जो फीटस रहता है वो इस यूट्रस में रहता है पूरा होल लाइफ. और यूट्रस के बाहर जो है प्लासेंटा की फॉर्मेशन होगी जो यूट्रस की ब्लड को फीटस में पहुंचाएगा, पास करेगा. तो 6th डे पे तो इम्प्लांटेशन होगी. तो जो 5 डे पे है जोना पेल्यूसिडा जो इनसर्कलिंग कर रहा था उस साइड को वो डिजेनरेट हो जाएगा और डिसअपियर हो जाएगा और ब्लास्टोसिस्ट जो है बिगिन इम्प्लांटेशन बाय द 6th डे. जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल है पेनिट्रेट ट्रोफोब्लास्ट आउटर सेल मास जो था जिसे प्लासेंटा वो एपिथेलियम को पेनिट्रेट करेगा और उस पेनिट्रेशन के लिए ट्रोफोब्लास्ट से कुछ एंजाइम निकलती है जिसको प्रोलाइटेक एंजाइम COX-2 एंजाइम कहते हैं, वो हेल्प करते हैं. अब ये जो एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हुआ था अब ये देखो थोड़ा थोड़ा पेनिट्रेट कर रहा है. ये जो ट्रोफोब्लास्ट है अगेन डिवाइडेड इनटू द सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट. जो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है वो इसका पेनिट्रेट करेगा. इसी तरह एम्ब्रियोब्लास्ट भी दो में डिवाइड होगा, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट. तो इस एट दिस स्टेज पहले क्या हुआ, अटैच हुआ, अब ये पेनिट्रेशन कर रहा है. पेनिट्रेशन कौन कर रहा है, ट्रोफोब्लास्ट कर रहा है. ट्रोफोब्लास्ट फिर दो में डिवाइड हो रहा है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट. तो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट जो है इसको पेनिट्रेट कर रहा है जो आउटर लेयर. फिफ्थ डे जो है जोना पेल्यूसिडा डिजेनरेट और डिसअपियर 5th डे पे हो जाएगा और ब्लास्टोसिस इंक्रीज इन साइज एंड पेनिट्रेट द एंडोमेट्रियम. 6th डे पे पेनिट्रेट करेगा. 5th डे पे जोना पेल्यूसिडा. अब एम्ब्रियोब्लास्ट प्रोजेक्ट इनटू द ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी. ये जो कैविटी है एम्ब्रियोब्लास्ट इनर मास था तो ये प्रोजेक्टेड इनटू द ब्लास्टोसिस्ट कैविटी. ये एम्ब्रियोब्लास्ट है इनर तो ब्लास्टोसिस्ट कैविटी की तरफ इसका यानी कि डायरेक्शन है
डायरेक्शन है while the trophoblast form the wall of the blastocyst. Blastocyst की जो सराउंडिंग वॉल है वो जो है वो ट्रोफोब्लास्ट 6 डे पे ब्लास्टोसिस्ट एडहरेंट टू द एंडोमेट्रियम, ये एडहरेंट हुआ था। अब 7th डे पे ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएटेड, मैंने आपको बताया कि साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है इनर, ये जो है साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये देखें साइटोट्रोफोब्लास्ट इन तो इनर मास था, और ये जो है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट जो है वो आउटर सेल मास है, आउटर मल्टी न्यूक्लिएटेड है और इनर मोनोन्यूक्लिएटेड है, माइटोकली एक्टिव होता है। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट ट्रोफोब्लास्ट किस में डिवाइड हुआ, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट फर्दर इन्वेड करेगा यूरा बाय द 8th डे ब्लास्टोसिस्ट इज द सुपरफिशियल एम्बेडेड कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम। जो सुपरफिशियल ये लेयर थी, तो 8th डे तक ये जो सुपरफिशियल लेयर है इसको ये पेनिट्रेट करके गया है। फर्स्ट वीक ब्लास्टोसिस सुपरफिशियल इम्प्लांटेड इनटू द एंडोमेट्रियम। तो ये देखें पूरा का पूरा, यानी कि ये जो है ब्लास्टोसिस्ट अभी ये यूट्रस में इम्प्लांट करके गया है, ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट ये यूट्रस की जो ब्लड कैपिलरीज हैं इसके साथ जाके अटैच होगा। ये जो इनर सेल मास है वो एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट है। ये हाइपोब्लास्ट, ये दो लेयर आप ब्लू कलर की और व्हाइट कलर की, ये हाइपोब्लास्ट में कन्वर्ट हो रहा है। एपीब्लास्ट, ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट था दो में डिवाइड हुआ। इसी तरह ट्रोफोब्लास्ट था वो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। Sir, voice is not coming clear, थोड़ी नहीं आ रही। जी बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये दो लेयर थी, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट जो है दो में डिवाइड हो रहा है, एपीब्लास्ट में और हाइपोब्लास्ट में। तो ब्लड फिल्ड लेक्यूना अपीयर इन द सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। ये जो लेक्यूना है ये ब्लड फिल्ड स्पेस है, उसको हम लेक्यूना कह रहे हैं। और कहाँ पे अपीयर हो रहे हैं, ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है वहाँ पे ये अपीयर हो रहे हैं, विच कम्युनिकेटेड फार्मिंग ए नेटवर्क ऑफ 10th डे और 11th डे तक ये एक कम्युनिकेशन बनाएगा जो आगे चल के यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन बनाएगा। यूट्रो मीन्स यूट्रस और प्लासेंटा, जो प्लासेंटा की फॉर्मेशन है, इस सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से प्लासेंटा की फॉर्मेशन होगी। तो यूट्रस की सर्कुलेशन और प्लासेंटा की सर्कुलेशन, इसको हम कहते हैं यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय द 11th और 12th डे। इनिशियली क्या हुआ था, ब्लास्टोसिस्ट जाके एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हुआ, आस्ता आस्ता ये पेनिट्रेट किया। जो ब्लास्टोसिस्ट का आउटर सेल मास था वो दो में डिवाइड हुआ था, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट इसको पूरा इरोड करके गया है और ब्लड जो यूट्रस में कैपिलरीज बनी हुई हैं वो लेक्यूना फील्ड छोटे छोटे स्पेस बन के इसमें आ रही हैं। फिर ये लेक्यूना जाके इसके साथ कम्युनिकेट करेगा, तो उसको हम कहते हैं यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट ये है। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट क्या कर रहा है, इरोड द एंडोथेलियल lining of the maternal capillary. Endothelial lining of the maternal capillary, which is known as the sinusoid. Now blood from the maternal capillary reach the lacuna. जो ब्लड मैटरनल ब्लड है अब ये लेक्यूना में आएगा। लेक्यूना इस सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ अटैच है और ये प्लासेंटा की फॉर्मेशन बनाता है। तो लास्ट में ये होगा यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन। देखा था एंडोमेट्रियल सेल अंडरगोज द अपोप्टोसिस। एंडोमेट्रियम जैसे ये पेनिट्रेट कर रहा था, पहले इनिशियली इस एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हुआ, फिर पूरा का पूरा बना। तो पेनिट्रेशन के दौरान जो एंडोमेट्रियल सेल में अपोप्टोसिस है, प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम फिजियोलॉजिकल सेल डेथ जो होती है, सेल डेथ होगा और उसको स्पेस मिलता गया। और ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट उसमें टू फैसिलिटेट द इन्वेजन ऑफ द एंडोमेट्रियम बाय द सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। एंडोमेट्रियल सेल की अपोप्टोसिस हुई और उसने अलो किया सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट के और फैसिलिटेट किया तो इन्वेजन। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट इंगल्फ द जो एंडोमेट्रियल सेल की अपोप्टोसिस हुई, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट उसको इंगल्फ करके उसको डीजनरेट कर दिया और न्यूट्रिशन भी वहाँ से हासिल की। तो इम्प्लांटेशन कैन बी डिटेक्टेड बाय द अल्ट्रासोनोग्राफी।
अब इम्प्लांटेशन हो गई तो अल्ट्रासाउंड में भी हम देखते हैं। और HCG हार्मोन जो है वो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से निकलता है, तो उसको हम यूरिन में या ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन देखते हैं और हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से निकला है और इसकी हो गई होगी इम्प्लांटेशन। और दूसरा तो हम देखते हैं कि वो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कितना, उसको कितना टाइम हुआ है, उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि बेबी की ये अभी इम्प्लांटेशन हो गई। दूसरा अल्ट्रासाउंड में थोड़ी लेट के में अल्ट्रासाउंड हम देखते हैं तो वहाँ पे भी ये एक ब्लास्टोसिस्ट वाली जो कैविटी है, एक स्वेलिंग होती है, यानी कि वो हम अल्ट्रासाउंड में पिक करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि इम्प्लांटेशन हो गई। एट द सेकंड वीक पे, ये फर्स्ट वीक से शुरू होती और पूरा सेकंड वीक जो है वो हमने सर जी बेटा। सर एपोप्टोसिस जो है नीडेड क्यों है वहाँ पे? एपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकली उसको हम कहते हैं, और जो ब्लास्टोसिस्ट अंदर जा रहा है, इम्प्लांटेशन कर रहा है, तो कुदरत की तरफ से उसको एपोप्टोसिस प्रोसेस में दे गया है, उसके सेल डेथ हो रही है और स्पेस बन रहा है, उसमें वो ब्लास्टोसिस की इम्प्लांटेशन हो रही है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि उसका एपोप्टोसिस है। अर्ली प्रेगनेंसी में फैक्टर एक तो इम्यूनोसप्रेशन प्रोटीन निकलती है कि एक मदर में जा रहा था, स्पर्म से फर्दर चीज़ें भी बनी है, तो आधा मटेरियल जो है स्पर्म का था, आधा मटेरियल उस साइड का था, तो ये फॉरेन बॉडी था, इसलिए कुछ फैक्टर निकलते हैं जो इम्यून को सप्रेस करवाते हैं, ऐसे नहीं कोई रिएक्शन हो जाए। और ट्रोफोब्लास्ट से जो है HCG नाम निकलता है, वो जाके कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, तो प्रेगनेंसी फिर वो प्रोगेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की सिक्रेशन करवाते हैं, तो अपीयर इन द मैटरनल स्पर्म विद इन द 24 to 28 आवर। एक दो दिन में जो है अगर इम्प्लांटेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई, तो HCG का जो हार्मोन है वो हमारे ब्लड में या यूरिन में आ जाता है। इट इज द बेसिस फॉर द अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट इन द फर्स्ट 10 डे ऑफ द डेवलपमेंट। फर्स्ट 10 डे हम प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं, PT करवाते हैं, उससे हम ये करते हैं कि उसमें हम देखते हैं कि PT पॉजिटिव है या ना है। फिर 10 डेज के बाद फिर हम यूट्रस का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे जो ट्रोफोब्लास्ट है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है, एम्ब्रियोब्लास्ट है, वो एक अपनी एक मास बनाता है, जिसको हम, और कैविटी ये बनी होती है, जिससे हम डायग्नोज करते हैं कि ये प्रेगनेंसी हो गई है। तो फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी कोरियोनिक विलाई, ये प्राइमरी कोरियोनिक विलाई, सेकेंडरी कोरियोनिक विलाई और टर्शियरी कोरियोनिक विलाई, इसकी वजह से फॉर्मेशन होती है प्लेसेंटा की। तो प्राइमरी कोरियोनिक विलाई कहते हैं कि जैसे पूरा का पूरा बेबी अंदर हो गया, या ब्लास्टोसिस्ट इम्पेंडेड हो गया और पेनिट्रेट करके गया यूट्रस में, तो 13 डे पे प्रोलिफरेशन ऑफ द साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल प्रोड्यूस द एक्सटेंशन इनसाइड द सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट बाहर से था, तो ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट अंदर के सेल थे, ये इस सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट में पेनिट्रेट कर रहा है, और इसको हम कह रहे हैं प्राइमरी कोरियोनिक विलाई। ये देखिए अंदर के जो था साइटोट्रोफोब्लास्ट था, बाहर में सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है। ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट ये जो बाहर की तरफ है, इसमें ये अंदर वाला साइटोट्रोफोब्लास्ट पेनिट्रेट कर रहा है। ये देखो, ये तो एक डिमार्केशन बनी हुई है, तो ये है, तो ये बाहर का सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब इसमें इस पिक्चर में ये साइटोट्रोफोब्लास्ट इसमें पेनिट्रेट कर रहा है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, इसको हम प्राइमरी विलाई कह रहे हैं। तो फिर टर्शियरी विलाई से और टर्शियरी सेकेंडरी विलाई हमको उसमें कर लें। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मैंने आपको बताया था कि वो शॉर्ट नोट भी आ जाता है और वो पूछा जाता है। नॉर्मली जो है प्रेगनेंसी जो इम्प्लांटेशन होती है वो यूट्रस में होती है। इट मीन द इम्प्लांटेशन आउटसाइड द यूट्रस। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि नॉर्मली जो है ये पोस्टीरियर वाल थी, यहाँ पे होती है। अगर यहाँ पे नहीं हो तो कहाँ पे हो सकती है? प्लेसेंटा प्रीविया में हो सकती है, फेलोपियन ट्यूब में हो सकती है। प्लेसेंटा प्रीविया ये है,
प्लेसेंटा प्रीविया यानी कि ये यूट्रस का जो लोअर पोर्शन है बिल्कुल अबाउट द सर्वेक्स के इस यहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाए, इम्प्लांटेशन हो जाए तो इसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ये इमरजेंसी होती है। नॉर्मल डिलीवरी के आगे ये आपका एक प्लेसेंटा बना हुआ है तो बेबी जो प्रॉपर बेबी है उसको डिलीवर नहीं करने देते। ये एक इंडिकेशन होता है कि गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड करती है कि इसका प्रोसीजर करें तो उनको कहते हैं कि नॉर्मल नहीं हो सकती है। और दूसरी ये है कि इसका जो प्लेसेंटा प्रीविया इन द लेटरल वॉल ऑफ द यूट्रस में एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा सर थोड़ा रिपीट करें जो आप कह रहे हैं कि सी सेक्शन और नॉर्मल के बीच जो गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड करती हैं। नॉर्मली मैंने आपको बताया कि प्लेसेंटा जो है ये पोस्टीरियर, ये कर्सर देख रही है, ये जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस है यहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है। अगर एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन बेटा जो ब्लास्टोसिस्ट बना था ना 6 डे पे जाके यूट्रस में इम्प्लांट कर रहा था तो नॉर्मली वो इम्प्लांटेशन हो रही थी पोस्टीरियर वॉल पे। अगर एबनॉर्मली ये आके लोअर पोर्शन ऑफ द सर्वे यूट्रस की अब वो द सर्वेक्स पे हो तो यहाँ पे ओपनिंग होती है। जब बेबी की नॉर्मल डिलीवरी होती है तो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होती है और ये सर्वेक्स से और वजाइना से फिर नॉर्मल डिलीवरी। अगर ये आपका जो पैसेज है वो बिल्कुल ब्लॉक है, जो ब्लॉक हो गया है और यहाँ पे प्लेसेंटा बन गया है तो प्रॉपर जो एम्ब्रियो है उसको जो कॉन्ट्रैक्शन होगी तो यहाँ से तो नहीं आ सकेगा। तो वो गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड करती है कि हमने अल्ट्रासाउंड पे देखा है कि प्लेसेंटा प्रीविया है और ये नॉर्मल नहीं हो पाएगा, हम डिसाइड कर रहे हैं कि इसका सी सेक्शन करें। तो दूसरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ये है कि आपकी लेटरल वाल नॉर्मली ये है पोस्टीरियर वाल जहाँ पे इम्प्लांटेशन हो रही है। अगर यहाँ पे लेटरल वाल पे भी हो सकती है और यहाँ सर्वेक्स पे भी हो सकती है। प्लेसेंटा प्रीविया मार्जिनलिस यानी कि सर्वेक्स और इसके नीचे ही, और लेटरल वाल यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। और प्लेसेंटा प्रीविया मार्जिनलिस माने कि आपका लोअर मार्जिन नियर टू द सर्वेक्स। ये 2-3 हैं जो प्लेसेंटा जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दूसरी है ट्यूबल, नॉर्मली जो है इम्प्लांटेशन होती है यहाँ पे और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई और यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गई तो उसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन द ट्यूब। और ओवरी में भी हो सकती है, यहाँ पे फ्यूजन हो गई ये ओवरी पड़ी है तो यहाँ पे ओवरी में भी हो सकती है और एब्डोमिनल कैविटी में भी हो सकती है। ये एब्डोमिनल कैविटी है तो ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, पेल्विस में हो सकती है और सर्वेक्स में भी हो सकती है। तो दीज आर द 6 डिफरेंट साइड वेयर द एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैन हैपन। इट मींस एक्टोपिक की माना क्या है कि इट मींस द इम्प्लांटेशन आउटसाइड द यूट्रस, आउटसाइड द यूट्रस मोस्टली, लेकिन यूट्रस में भी एबनॉर्मल जगह पे हो सकती है। तो ये जो प्रेगनेंसी थी ये यूट्रस ही है पूरा तो नॉर्मली पोस्टीरियर वाल पे होता था, ये हो जाना। तो 95 to 97% एक्टोपिक प्रेगनेंसी आकर इन द यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब जो है ये है यूट्राइन ट्यूब, ये से यहाँ से लेके अब तो यहाँ पे 2 जो है स्टमक रीजन होता है, इसको हम यूट्राइन ट्यूब कहते हैं। तो 97% 95 से 97 तक ये यहाँ पे हो सकती है। बाकी जो है 5 to 3% जो है वो कहीं भी हो सकती है। तो प्लेसेंटा प्रीविया भी हो सकती है एब्डोमिनल पेल्विस सर्वाइकल रीजन में। प्लेसेंटा प्रीविया इम्प्लांटेशन आकर इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, अपर यूट्राइन। जी बेटा। सर जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसके जितने भी वो हैं टाइप्स हैं वो सारे नॉर्मली हो रहे हैं या फिर ये एबनॉर्मल कंडीशन में होगा? एबनॉर्मल कंडीशन, एक्टोपिक मींस एबनॉर्मल। नॉर्मली जो होता है वो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस, ये मेरा आप कर्सर देख रही हैं, ये है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस। एंटीरियर वॉल इसके आगे होगा, ये पोस्टीरियर वॉल पे होता है और इसकी जगह से अलावा कहीं भी हो तो यहाँ पे लेटरल वाल से भी हो रही है, लोअर सेगमेंट में भी हो रहा है और फेलोपियन ट्यूब में भी हो रहा है, एब्डोमिनल कैविटी में भी हो रहा है, यहाँ पे ओवरी में हो रहा है। तो ये ऑल आर द एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं होते। ठीक है बेटा। अच्छा सर एक और क्वेश्चन है मेरा सर। जी बेटा बताएं। सर जो HCG का रोल है वो थोड़ा सा डिफाइन कर दें, मुझे समझ नहीं आया, मैंने बुक भी पढ़ी थी। HCG कहते हैं कि जब हम एक तो हम PT जब करवाते हैं पेशेंट की प्रेगनेंसी टेस्ट, ठीक है, तो उसका 10 डेट तक हम उसकी यूरिन का या उसके ब्लड में HCG देखते हैं और उससे हमें अंदाजा लगता है कि ये प्रेग्नेंट हो गई है। और HCG निकलता कहाँ से, ये जो सिनसाइट और ट्रोफोब्लास्ट था ना जो इम्प्लांट कर रहा था एंडोमेट्रियम में, इसका जो टिश्यू है वहां से निकलता है HCG।
एक तो हमने पीटी पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए यूज करते हैं, ये हो गया इसका यानी कि क्लिनिकल यूज। और जो जो दूसरा इसका थेरापेटिक यूज है, ये एचसीजी जो ओवम की ओव्यूलेशन हो गई ना, ओवम जी। कहाँ पे बना था? ओवरी में, वहां पे एक फॉलिकल बना, ओवम निकल गया, पीछे जो मटेरियल बना बच्चा, उसको हम कह रहे हैं कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी हुई और ये एचसीजी निकला, इसने आके इसको मेंटेन किया कार्पस ल्यूटियम को। अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी, एचसीजी नहीं निकलेगा, तो कार्पस ल्यूटियम विद इन 10 डेज और 12 डेज में डीजनरेट हो जाता है। और एचसीजी निकलेगा, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, और कार्पस ल्यूटियम मेंटेन होगा तो वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सीक्रेशन करवाएगा। और ईस्ट्रोजन की प्रोजेस्टेरोन की सीक्रेशन कार्पस ल्यूटियम में अप टू द 5th मंथ तक कंटिन्यू रहेगी। 5th मंथ के बाद जाके पूरा प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर प्लेसेंटा से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सीक्रेशन होगी, और ये जो है कार्पस ल्यूटियम फिर खत्म हो जाएगा। समझ में आया बेटा? जी सर। ठीक है, थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर फिर मैं देखूंगा कि कौन सा टॉपिक है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कोई क्वेरी हो इस पे, ये बड़ा टिपिकल टॉपिक है, और थ्रू आउट द मेडिकल लाइफ ये काम वाली चीज है, और इस पे हम डिपेंड करते हैं कि कहाँ पे हम जो वो देते हैं ना भाई, क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने को क्या कहते हैं? कंट्रासेप्टिव। कंट्रासेप्टिव का मेथड भी यहाँ पे होते हैं। कभी ओव्यूलेशन को हम खत्म कर देते हैं, और ऐसी ड्रग देते हैं कि ओव्यूलेशन हो ही नहीं हो। कभी कभी प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ओव्यूलेशन इंडक्शन देते हैं कि ओव्यूलेशन हो जाए। फिर ओव्यूलेशन 14 डे पे जो साइकिल होती है, तो 14 डे पे ओव्यूलेशन होती है। 14 डे से पहले जितने भी डे हैं वो सेफ होते हैं। उसी दौरान जो कपल्स हैं वो विदाउट यानी कि कंट्रासेप्टिव मेथड, विदाउट कंडम या विदाउट एनी ड्रग्स के वो इंटरकोर्स करके जाते हैं, और प्रेगनेंसी नहीं होगी और ओव्यूलेशन होगी। फिर वो क्या एहतियात करेंगे, अब 14 डे पे ओव्यूलेशन हो गई है, अब ओवम पड़ा हुआ है, स्पर्म जाएगा तो वो फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस पे साइकिल चली जाती है कि इस पे ये नॉर्मल मैकेनिज्म पता होता है। तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट की जो ऑब्स्टेट्रिशियन है वो 70% इस पे चलते हैं। तो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इससे थोड़ा आप किताब से पढ़ के और समझ देना। थैंक यू बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़। सर एक क्वेश्चन है। जी बेटा। एक टॉपिक प्रेगनेंसी। सर ये एबनॉर्मेलिटी अक्कर क्यों होती है? जी बेटा। एबनॉर्मेलिटी होती क्यों है? उसके बड़े फैक्टर हैं। आप यहाँ तक आपकी जो लेवल है, तो आप जब पैथोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो हम यहाँ पे बहुत सी जो है एम्ब्रियल फिजियोलॉजी पर डिस्कस करते हैं फर्स्ट ईयर में। फिजियोलॉजी होती है जो नॉर्मल फेनोमेना होता है। जी जी। तो उसके बड़े फैक्टर पीआईडी है ना, पहले इन्फ्लामेटरी डिजीज है, तो इन्फेक्शन होता है। अगर वो हो तो उसका भी रीजन हो जाता है कि वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी करता है। और दूसरे भी कुछ ड्रग्स हैं। अगर आपने ओव्यूलेशन इंडक्शन लिए तो मल्टीपल प्रेगनेंसी भी होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी कि एक से दो ट्विंस जो है उसका कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि मल्टीपल भी कराता है, एक्टोपिक कराते हैं। तो बड़े रीजन है। इसी स्टेज पे आपको पता होना चाहिए कि एक्टोपिक ये है कि एबनॉर्मल साइड पे इम्प्लांटेशन हो, और एब्नॉर्मल साइट कौन सी है। ठीक है बेटा। सर अगर यूटेराइन पे हो रही है प्रेगनेंसी, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी वहाँ पे हो रही है यूटेराइन में, तो सर उसकी जो फॉलिक वॉल है वो तो पूरी बर्स्ट हो जाएगी, वो तो परफोरेट हो जाएगी। तो उसके लिए वजह तो मतलब पोस्टीरियर वॉल में नॉर्मल जो होती है वो तो बस नहीं होती है। नहीं सर, अगर यूटेराइन ट्यूब में हो जाए प्रेगनेंसी, आपने कहा ना 95 तो से वो 97% हाँ, होती है, तो वहाँ पे तो सर बर्स्ट हो जाएगी ना उसकी वॉल, हाँ बस्ट हो जाती है। जाएगी। वो ज्यादातर वो फुल प्रेगनेंसी होती नहीं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी गायनेकोलॉजिस्ट में इमरजेंसी होती है, जिसमें लेप्रोटॉमी करके फिर उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, और पूरा एम्ब्रियो और पूरा ट्रोफोब्लास्ट जो है प्रॉपर नहीं बनता है। जैसे वो थोड़ा ग्रो करेगा तो बस्ट हो जाता है, रप्चर हो जाता है इमरजेंसी में। मेजॉरिटी केसेस में यानी कि मोर देन 70% जो केसेस है वो इमरजेंसी में आ जाते हैं। तो इसकी तो फुल टर्म बड़ा कोई 1% कोई होगा जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो ये यूट्रस में हो रही है ना, प्लासेंटा प्रीविया और प्लासेंटा प्रीविया लेटरलिस मार्जिनलिस, ये यूट्रस वाली साइज पे ही होते हैं। तो यूट्रस में ये इम्प्लांट कर जाते हैं। तो नॉर्मली भी पोस्टीरियर वाल में। जी बेटा। सर आपने जैसे बताया कि जो 14 डेज होते हैं वो सेव होते हैं,
फॉर कपल्स। लेकिन सर फॉर एग्जांपल अगर किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन में एक प्रॉब्लम है तो उसकी 28 डेज के बाद मेंस्ट्रुएशन रिपीट नहीं हो रही, नहीं, वो तो रिपीट नहीं हो एबनॉर्मल की रही, हो रही है। नॉर्मल जो नॉर्मली तो सर हेल्दी जो तो कपल्स उनके होते लिए हैं, सर तो उनके लिए भी तो 14 डेज सेव नहीं हुए ना। नहीं, जो एबनॉर्मल होगा उनके लिए तो नहीं होगा। एक कपल है जिसकी जो यस सर। वाइफ है, उसकी जो साइकिल है रेगुलर है, यानी कि यस सर। मंथली है, कोई भी उसमें ओवरड्यूज नहीं होती है या पे प्री टर्म नहीं होता है, तो वो ये काउंट कर सकते हैं। अगर मैं एबनॉर्मल किसी किसी फीमेल में यानी कि 2-2 मंथ तक उनको ये नहीं आती है और उसकी नॉर्मल साइकिल ऐसी हो जाती है, ये सर भी वो आके कहती है कि मेरा तो ये अब ये ऐसे ही होती है हर 1.5 महीने से 2 महीने के बाद। तो वो नहीं, जो प्रॉपर जिनका यानी कि 25 से लेके 32 तक ये नॉर्मल पीरियड है, यानी कि 28 उसका मीन है और 25 से लेके 33 या 35 तक ये नॉर्मल पीरियड है। अगर इनके किसी कपल की न ये नॉर्मल इस पीरियड में आ रही है तो वो ये कर सकता है, यानी कि यूज कर सकता है ये टेक्निक। मेथड। यस सर। ठीक है बेटा, यस सर, थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी सर। भैया साहब,